Now today let's start with chapter number 4, materials. In this chapter I will tell you about metals and non-metals. Let's study about what are metals. On the basis of their physical and the chemical properties, we have divided elements into two parts. And what are these? These are the metals and non-metals. But there are also certain elements which have some properties of metal, and some metals they are known as metalloids. Like you can say antimony, arsenic, and your tellurium. What are these? These are the properties of this metal. Now first is metal. Let's study its physical and chemical properties. So, matter that possesses characteristics of being hard, shiny, malleable, fusible, ductile. दे आर टर्म्ड एज मेटल्स. देखो जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो हार्ड है, शाइनी है, मेलिएबल है, ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं आपके मेटल्स की. एंड दे आर टर्म्ड एज मेटल्स. टू एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर आयरन, gold, silver, aluminum, copper. These all are the example of metals. Then physical properties of metal. What are the different physical properties? First is malleable. Metals are generally malleable. They can be beaten into thin sheet. आप हैमर लेके बिना तोड़े उसको एक थिन शीट में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो. This property of metal is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals and they can be hammered into very thin sheet. आप इनको हैमर कर सकते हो, तोड़ सकते हो एक थिन शीट में. एंड दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग. आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं मेडिसिन रैप करने के लिए, चॉकलेट्स रैप करने के लिए, फूड जो भी है उसको रैप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. देन यू हैव टू कंसीडर द एलिमेंट्स. एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज कंडक्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टिविटी? दिस मीन्स कि जो वाटर जो आपका मेटल है वो अलाउ करता है करंट क्या करे? करंट और हीट पास करे थ्रू. Property of metal that allows the current and heat to pass through them easily, like metals like iron rod, nail, copper, wire. These all are the good conductor of electricity. ये सारे क्या है? Good conductor हैं आपके electricity के. Then we had ductility. What is ductility? कि इसको हम wire में draw कर सकते हैं. ठीक है? We can make wire with the help of it. So this property of metal allows them to be drawn into wire, like metals like aluminum and copper. They are used to make wire और इनका हम use electric connection में भी करते हैं. That's why they are known as ductile metals. Like you have zinc, arsenic and antimony. What are these? These are non-ductile metals. Like we have, let's consider what are ductile and what are non-ductile. Like you can say copper, aluminum, gold, silver. These are ductile, and zinc, arsenic and your antimony. What are these? These are non-ductile. Next is sonorous. Let's study about the sonorous. ये क्या प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको बीट करेंगे, मारेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी. So property of metal that produces ringing sound on hitting. Ringing property of metal depends upon the, वो किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पे, उसकी डेंसिटी पे. Then we have lustrous. This property of metal makes them shine and their structure are capable of reflecting incident light. ठीक है, ये शाइन करते हैं और जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं they are capable of reflecting incidents light. Like you have gold, silver, copper and platinum. Metals like sodium and potassium are soft and be cut with a knife. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आप इसको easily knife से कट कर सकते हैं. Then we have hardness. ड्यू टू द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की वजह से क्या होता है? मेटल से होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ ऐसे होता है जिनमें नॉन डक्टाइल और नॉन मैलेबल प्रॉपर्टी होती है. एंड दे आर नॉट ऑल स्ट्रॉन्ग. और ये सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. जैसे अगर जो मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं जो सॉलिड होते हैं, मतलब जिनके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली और वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं. किस पे? रूम टेम्परेचर पे. जैसे आपके मर्करी और गैलियम हो गया, ये आपको लिक्विड स्टेट पे मिलते हैं. ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमें लिक्विड स्टेट पे मिलते हैं. देन वी हैव हाई मेल्टिंग. इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है.
Most of the metal they have high boiling point. They are solid in nature and always have high melting and boiling point. क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड होते हैं. इसकी वजह से जो इनका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है. सॉरी, like we had sodium, potassium, mercury, gallium. They have low melting point and low boiling point. Next is your high tensile strength. जिनकी tensile strength होती है वो बहुत ज़्यादा high होती है. So the metals can be bear the strain are termed as high tensile strength like zinc, arsenic, antimony. They have low tensile. इनकी जो tensile strength होती है वो low होती है. Now let's study the chemical properties. वेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें मॉइस्चर आएगा और वो क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड, मतलब जंक लग जाता है, आपने देखा होगा. सो व्हेन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर विल कंबाइन, व्हाट दे विल मेक, आयरन ऑक्साइड. वो क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएंगे. राइट, एग्जाम्पल लाइक वी हैव 2CuH2O plus CO2 plus O2, what they will make, they will make carbon hydroxide and your copper carbonate. Now testing of nature, let's test the nature of rusting. कुछ steps यहाँ पे दिए हैं आपको. Now when some metal react vigorously with water, like case of sodium, it is stored in kerosene. उसको हम किस में स्टोर कर देते हैं, kerosene oil में. Then some metals react with water to form metal oxides and metal hydroxide. Hydrogen gases remain. इस रिएक्शन में क्या होगा, आप जब भी देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज करी जाती है. ऑन अदर हैंड कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, राइट. Like in case of iron, sodium plus water, what they give, sodium hydroxide plus hydrogen. Magnesium plus water will be magnesium hydroxide plus hydrogen, or calcium plus water, calcium hydroxide plus your hydrogen. So some metals react with cold water and some with hot water and some with steam. Metals that react with cold water, जो भी metals cold water के साथ react करेंगे वो ज़्यादा stable होंगे. ठीक है, जैसे आपके हाइड्रोक्साइड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लाइक वी हैव पोटेशियम प्लस वाटर, what it will give, potassium hydroxide plus your hydrogen. Then some metals react with hot water, जो और क्या ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, लाइक मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. देन सम मेटल्स रिएक्ट विद स्ट्रीम, कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. और यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दी है, जब 2Fe प्लस 3H2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, Fe2O3 प्लस H2. नाउ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, लेट्स स्टडी अबाउट द टेंडेंसी. फर्स्ट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिएक्ट लाइक दिस, मोर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. लाइक वी हैव your potassium and your calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron and your copper. So these all are the metals. Here these are more reactive and here they are non-reactive. So reaction with metals with dilute acid. सबसे हम बात करते हैं जब हम metal को react करवाते हैं dilute acid के साथ. So in this a metal reacts with acids and release hydrogen gas. और आप देखेंगे कि इसमें से pop-up sound आती है. Now the presence of hydrogen gas is confirmed by bringing a burning matchstick or candle near the gas. And that burning matchstick or candle produces pop sound. That means hydrogen gases evolved. Like you can see over here, Na plus HCl. NaCl means sodium chloride plus hydrogen देता है. That MgH2SO4, that is magnesium sulfate plus hydrogen. Ca मतलब calcium nitrate plus hydrogen. इट इज फाउंड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट. आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. किसके साथ करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. जब भी वो हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. इट विल बी, देयर विल बी नो रिएक्शन. नाउ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड वाटर, एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन HC. तो वाटर है वो लेस रिएक्टिव होता है. नाउ रिएक्शन ऑफ मैटर विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन. अब मैंने आपको डाइल्यूट बताया था, अब हम बात करेंगे मेटल सॉल्ट सोल्यूशन. इन दिस यू कैन सी व्हेन सॉल्ट ऑफ मेटल बी रिएक्ट्स विद मेटल ए, जब बी वाला ए के साथ रिएक्ट करता है
तो salt of metal B plus metal A, what it's give? Salt of metal A plus metal. So like we have CuSO4 plus zinc, that is more reactive. What it will be give? It will give you colorless JnSO4 plus Cu, that is copper. Now let's study about the uses of metal. We have so many important uses of metal. Like lead is used in X-ray machine and for making automobiles battery. Lead का हम use करते हैं X-ray machines में. Then iron is used in constructor like bridges, engine part, iron sheet, bars used in construction and steel. Mercury को हम use करते हैं thermometer में. Gold and silver को हम use करते हैं ज्वेलरी बनाने में. Silver is used for electroplating, photography and silvering of mirrors. देन वी हैव एल्यूमिनियम फॉइल जिसको हम फूड पैकिंग में यूज करते हैं. ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिक वायर्स भी बनाते हैं, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स भी. कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वन. कॉपर का भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में. ठीक है, आपके कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में और आपके कॉइन्स केटल्स बनाने में हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का. दीज आर सम ऑरल क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स. Metal we have completed. I have told you about all the physical properties and chemical properties. Now we will study about non-metals. Our next topic is non-metals. Material that do not possesses the characteristics of metal. जो material किसकी characteristics possess नहीं करता? Metals. So what they are called? Non-metals. Like these are neither malleable nor ductile. ना तो ये malleable होते, ना ये ductile होते, ना आप इनको वायर में तोड़ सकते, मरोड़ सकते, और ना ही ये क्या होते? Brittle होते. Material like coal and sulfur, they are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass or tapping. अगर आप इनको हैमर से मारोगे तो इनका चूरा हो जाएगा, पाउडर सा बन जाएगा. दे आर नॉन सोनरस, कोई भी तरीके की आवाज नहीं निकलती, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और लाइट. Like sulfur, your carbon and your oxygen. What are these? These are non-metals. Now let's study about the physical property of non-metal. First is non-malleable. मतलब आप इनको अगर शीट से तो मारेंगे, मतलब हैमर से मारेंगे शीट को, तो एक पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाती है. ठीक है, वायर में चेंज नहीं होती. Non-metals are generally beaten and hence cannot be beaten into sheet or drawn into wire. So non-metals, and they are non-malleable, non-ductile. Where stress is applied on non-metal, वो pieces में टर्न हो जाते हैं. जैसे ही आप जरा से भी मतलब हैमर से उसको बीट करोगे तो pieces में टर्न हो जाएगी. Like we have sulfur and phosphorus. Next is non-ductile. मतलब आप उसको मेल्ट नहीं कर सकते और ना ही उससे वायर बना सकते. ये कैसे होते हैं? ब्रिटल इन नेचर. Next is poor conductor of heat and electricity. So non-metals are generally bed conductor. ये bed conductor होते हैं. They do not have free electrons. Carbon graphite is an exception. Graphite is good conductor of electricity due to its special, जो उसकी crystallized arrangement होती है, उसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? Poor conductor. ठीक है. It is used in making electrodes. इसका हम यूज करते हैं क्या बनाने में? Electrodes बनाने में. Non-sonors. Non-metals do not make any sound when hit with an object. जब आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो किसी तरीके की साउंड नहीं करता. ऐसा आपका फॉस्फोरस हो गया. Then we have non-lustrous, means they are formed in a form of powder and a gas. They do not have any shine. They cannot be polished. Like we have carbon, iodine. ये exception है. They are lustrous as their surface possesses a shine. तो उनकी surface होती है उसमें थोड़ी shine होती है. तो ये एक exception केस में आ जाता है. वैसे अगर हम बात करें तो ये non-lustrous होते हैं. If we talk about softness, ये बहुत ज़्यादा soft होते हैं, right? Due to non-ductile and non-malleability properties, non-metal are not strong. ये strong नहीं होते, ठीक है? Then we have carbon, that is diamond. It is an exception. Diamond is very hard. In fact, diamond is the hardest natural substance. अगर हम बात करें तो diamond जो है वो सबसे ज़्यादा hardest natural substance है जिसके बारे में हम जानते हैं. ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है एट रूम टेम्परेचर. सो जो नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये गैसेस होती है. ठीक है, ये गैस प्लस नॉन मेटल है.
और ब्रोमाइन नॉन मेटल है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। याद रखना कि ब्रोमाइन क्या है, नॉन मेटल, इट इज नॉट अ मेटल। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि नेम अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और कुछ ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन ब्रोमाइन दिया गया, तो इट्स नॉट अ मेटल, इट्स नॉन मेटल। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। सो नॉन मेटल्स आर लूजली पैक्ड एंड लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, हैंस नॉन मेटल पोजेसेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अलग रखना है, ठीक है, बिकॉज इट पोजेसेस वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाउ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी अ स्ट्रेन एंड दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, आप उसको इजिली तोड़ सकते हैं। Then we have chemical properties of non-metal. Now reaction with oxygen. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, so oxides of non-metal are formed when non-metals react with oxygen. The oxides of non-metals, they are acidic in nature. और ये किसमें टर्न हो जाते हैं? They turn blue litmus to red. Like we have C plus O2, what it gives? CO2. Then when sulfur react with oxygen, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड्स। जब भी हम बात करें कि जो फॉस्फोरस है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, हमें दो ऑक्साइड्स मिलते हैं। कौन कौन से? फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। सो फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स अस फॉस्फोरस ऑक्साइड, और phosphorus plus oxygen what it gives us? Phosphorus pentoxide. Now reaction with water. Non-metals do not react with water but are usually very reactive in air. That is why some of them are stored in water. आप देखेंगे कि इसलिए ही हम क्या करते हैं, कुछ को वाटर में स्टोर करते हैं। वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो फॉस्फोरस है, ठीक है। वो क्या करता है, जो फायर है उसको इजिली फायर कैच कर लेती है। Like non-metals do not have sufficient electrons to reduce hydrogen. Non-metals plus HOH, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। Now it's an activity, ये आपको शो करना है कि जो ऑक्साइड होता है नॉन मेटल का, दैट इज सल्फर, इज एसिडिक इन नेचर। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। ये आपको शो करना है खुद। नाउ लेट्स स्टडी विद रिएक्शन विद बेसिस। देखो जब भी कोई भी रिएक्शन होगा नॉन मेटल और बेसिस के बीच में, ठीक है, जिसके होगा नॉन मेटल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें रिएक्शन ऑफ क्लोराइड विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या देगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड देगा और वाटर देगा। देन वी हैव uses of non-metal. The important use of non-metals are as follows. Sulfur is used in vulcanization of rubber that makes rubber sufficiently hard. जो रबड़ को हार्ड बनाती है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या बनाते हैं? टायर्स बनाते हैं। देन फॉस्फोरस, इट इज यूज फॉर मेकिंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं लीड ऑफ पेंसिल बनाने के। हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, दैट विल बी नॉन पॉल्यूटिंग, सबसे नॉन पॉल्यूटिंग ऑप्शन होगा। क्लोरीन को हम वाटर में ऐड करते हैं उसको प्यूरिफाई करने में। आयोडीन का हम यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर करने में, राइट। कार्बन इज यूज इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कटिंग, ग्राइंडिंग। और इसको हम किस फॉर्म में? जैसे ब्लैक लेड पेंसिल होती है तो उसके फॉर्म में बनाते हैं। नाउ लेट्स सी द कंपैरेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। हम कंपैरिजन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स की और मेटल्स की। आप देखते हैं फिजिकल स्टेट की बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कलर और लस्टर्स की बात करें तो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डल होते हैं, वो लस्ट्रस और शाइनी नहीं होते। मैलेबिलिटी और डक्टेबिलिटी, मेटल्स डक्टाइल भी है, मैलिएबल है, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं। देन हार्डनेस की बात करें, सारे मेटल हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। देन सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है हीट है, राइट। दिस इज अ डिफरेंस, अ वास्ट डिफरेंस। और कंडक्टिविटी की बात करें जो मैंने आपको बताया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर। नाउ कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन। सो फर्स्ट इज रिएक्शन विद एयर। जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, और किस नेचर का होगा? बेसिक, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा?
नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और कैसा नेचर का होगा, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल नेचर का होगा। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करेगा, मेटल, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वो रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड्स फॉर्म मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और आपका जो एसिड होता है वो रिएक्ट ही नहीं करता सॉल्ट के साथ। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, दे हाइड्रोजन गैस मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। देयर मस्ट बी एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Now we have done with this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.